ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਐਡੂਕਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਟੈਂਸਸ। ਲੇਕਿਨ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ 12 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਂਸਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਨਰਲੀ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਪਾਸਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲ ਮੀਨਸ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ 4 ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰਫੈਕਟ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿ ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਰਿਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਵਰਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 5 ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਸਸ ਲਈ ਰੂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰਬਸ ਜਾਂ ਵਰਬਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੇयर ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ 5 ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਵਰਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਦੰਤਕ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਦੰਤਕ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਊਂਗੀ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਚ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਫਥ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਚ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤੇ ਕੈਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਈਐਨਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਚਿੰਗ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਈਐਨਜੀ। ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ, ਟੂ ਕੈਚਿੰਗ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੈਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਕੈਚ। ਦੈਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੀਡ। ਹੁਣ ਰੀਡ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਰੀਡ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਰੀਡ ਤੋਂ ਰੈਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਰੈਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਰੀਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਈ ਰੈਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਰੀਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਡ। ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹੈਡ ਰੈਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਰੈਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਰੀਡ, ਰੈਡ, ਰੈਡ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਈਐਨਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।
और इनफिनिटिव दे विच टू प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू रीड। इसी तरह एक और वर्ड ले लेने आ ईट। ईट हुंदा है वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इहदी आ गई एट, ठीक है। देन उस तो बाद थर्ड फॉर्म इहदी आ जाती है ईटन। मैं हर एक तुहानू अलग इसलिए समझा रही हाँ कि वर्ब्स की जानकारी जिहड़ी है टेंसेस नू समझण लई बहुत इंपॉर्टेंट आ। जेकर सानू वर्ब की प्रॉपर जानकारी होगी तो फिर ही अहीं उन्हां दा जिहड़ा आ सही तरह नाल उन्हां नू ट्रांसलेट कर पावांगे इंग्लिश दे विच, या साडे जिहड़े सेंटेंसेस आ तां ही सही होणगे जेकर सानू वर्ब की प्रॉपर नॉलेज हैगी है। सो ईट, एट, ईटन, और इहदे विच की हो गया ईट प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ईटिंग। एंड सिमिलरली इनफिनिटिव च की आ गया टू प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म टू ईट, ठीक है जी। देन एक और वर्ड लेने आ पुट। हुण पुट दी वर्ड फर्स्ट फॉर्म जिहड़ी आ पुट आ, बट इहदी सेकंड भी पुट ही रहिंदी है। इसी तरह कट वर्ड जिहड़ा आ इहदी फर्स्ट फॉर्म भी यही रहेगी, सेकंड फॉर्म भी यही रहेगी। पुट पुट पुट, थर्ड भी वही कट कट कट, पुटिंग, ठीक है। देन कटिंग, राइट। फिर इतने आ जाऊगा टू कट, टू पुट, टू कट। देन उस तो बाद कुछ वर्ड्स होंगे ने जो आप सेकंड फॉर्म दे विच उन्होंने लैके जाने आ ते ईडी लग जाता मगर, जिवें कि एक वर्ड आप ले लेने आ क्लीयर, क्लीयर, ठीक है। सो क्लीयर दी सेकंड फॉर्म होंदी है क्लीयर्ड, क्लीयर्ड। थर्ड फॉर्म भी जिहड़ी है क्लीयर्ड होंदी है। उस तो बाद फोर्थ फॉर्म क्लीयर प्लस आईएनजी, फिफ्थ फॉर्म टू क्लीयर, राइट। सो एक कुछ एग्जांपल्स ने जिहड़ियां डिफरेंट डिफरेंट तरीके नाल आपां इन्हां नूं लिखदे हां, ठीक है। एक बार मैं साइड ते हो जाए तुसीं लिखना ते लिख लो, ठीक है। सो इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स ने, जिवें फॉरगेट है भुल जाना, फॉरगेट दा सेकंड फॉर्म होंदा फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म होंदी है फॉरगॉटन, ठीक है, फॉरगॉटन। एंड उस तो बाद फोर्थ फॉर्म फॉरगेटिंग, फिफ्थ फॉर्म टू फॉरगेट। सो इसलिए वर्ब्स की जानकारी जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन्नियां भी फॉर्म्स आ तुसीं नैट तो भी डाउनलोड कर सकते हो, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बहुत सारा तुहानूं पीडीएफ्स तुहानूं मिल जाणगियां जिहदे तो तुहानूं जिहड़ियां वर्ब्स दी एक अंदाजा हो जाऊगा कि सेकंड फॉर्म की हुंदी है, थर्ड फॉर्म की हुंदी। मेनली ते सेकंड ते थर्ड ही जिहड़ी है याद रखनी इंपॉर्टेंट आ। जिहड़ी फोर्थ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲਸ ਆਈਐਨਜੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ठीक है। सो अज आप स्टार्ट करांगे, मैं सिंपली ही तुहानूं थोड़ा थोड़ा करके ही करवाऊंगी, ठीक है। जिवें टेंसेस आप गया कि हर एक टेंस अगों 4 तरह का आ। सो अज आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही गल करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इहनूं आपां कह दिंदे आ। हुण इहदी पछाण की हुंदी है पंजाबी दे विच? पंजाबी दे विच इहदे पिछे दा है, ठीक है, दी है, ते हन लगा हुंदा। जिवें ओह पढ़दा है, पढ़दी है, या ओह पढ़दे हन, ओह पढ़दे हन, ठीक है। सो इदां दी आपां ओह सेब खांदा है, ओह रोटी खांदी है, ओह गाना गाउंदी है, ठीक है। सो इदां दे जिहड़े वर्ड्स ने पंजाबी दे विच आपां इन्हां नूं ट्रांसलेट जदों करदे इंग्लिश दे विच ते उदों साडे जिहड़ा रूल लगदा है सिंपल प्रेजेंट दा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दा लगदा है, ठीक है। सो इंग्लिश दे विच इहदी पछाण की हुंदी है कि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगदी है पहली गल ते प्लस एस या ईएस लगदा है, ठीक है। वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लगदा। हुण इहदे विच भी अगों दो रूल ने। जदों आपां सिंगुलर दी गल करनी है, सिंगुलर मीनस एक वचन दी गल करनी है, तो सिंगुलर दे विच जिहड़ा आ ओह सब्जैक्ट दे नाल एस या ईएस लगूगा। सब्जैक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगूगा। जिवें कि ओह पढ़दा है, ही रीड्स, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दिंदी हाँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस दे विच पछाण की हुंदी है दा है, दी है, देहन लगा हुंदा है। इंग्लिश दे विच जदों आपां नूं चेंज करदे हां ते सब्जैक्ट दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म
प्लस एस या ईएस लगा हुंदा है सिंगुलर दे नाल। हुण आपां बहुवचन की गल करते हैं, यानी कि प्लूरल यानी कि बहुवचन। हुण प्लूरल दे विच की है, सिंपली वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, जिवें कि दे प्ले, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, राइट। सो एक छोटी जी गल तुसी याद रख लो कि आई, चाहे कि आई सिंगुलर है, आई का मतलब मैं, आई भावें सिंगुलर है बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, एस या ईएस नहीं लगता, ठीक है। जिवें कि आई प्ले, मैं खेडदा, पर जिवें हुणे तुहानूं ही दी गल दसां, ही शी इट, ठीक है, दा आई ना यूज करके सिंगुलर यूज करना हो, जिद्दां ही लिखांगी तो ही प्लेस आऊगा, या फिर नवनीत प्लेस, ठीक है, नवनीत इक्को ही है, इत्थे इक्को ही है हजे, राइट। सो एक मोटी जी गल तुसीं याद रख लो कि सिंगुलर यानी कि एक वचन नाल की वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है, और प्लूरल यानी कि बहुवचन सिंपली वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ईएस नहीं लगता, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे विच, ठीक है। हुण इहदे विच आपां एक टेबल बना लैंदे आ, आई वी यू दे, मतलब कि आई प्लस कोई भी प्लूरल है, आई प्लस कोई भी प्लूरल है तो ਉਹਦਾ रूल की है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सिंपल प्रेजेंट टेंस की गल करनी है, ठीक है। आई वी यू दे यानी कि आई प्लस कोई भी प्लूरल है ਉਹਦੇ ਨਾਲ वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, एस या ईएस नहीं लगता सिंपल प्रेजेंट टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है he, she, it, ठीक है, he, she, it यानी कि जो आप गल करनी है सिंगुलर दी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ਹੁਣ he, she, it की है सब्जेक्ट ने, ਇਹ ਨੇ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ठीक है। सो सब्जेक्ट ਦੇ ਨਾਲ वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है, ठीक है। जिवें रूही गाना गाउंदी है, रूही सिंग्स सॉन्ग। हुण इत्थे की है, सब्जेक्ट की है सिंगुलर है, ठीक है, और वर्ब की है सिंग गाउंदी है ना। जिवें मैं तुहानूं वर्ब दीयां फॉर्म्स दसियां ते सिंग दी जेकर आप जो पास की गल करांगे तो इत्थे फिर गाना गाउंदी सी, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਂਗ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਸ ਸੌਂਗ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ठीक है। ये हो गया सिंपल सेंटेंसेस। मैं लास्ट में तुहानूं एक छोटी जी एक्सरसाइज भी दूंगी। हुण आपां गल करदे हां नेगेटिव सेंटेंसेस दी, नेगेटिव ते इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दी। आपां टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े सीगे, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि दो फॉर्म्स दस्सिया सी, असर्टिव या डैक्लेरेटिव जिन्हों आपां कहने आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ दो तरह के वर्ड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सेंटेंसेस होंगे ने। एक होंगे ने अफर्मेटिव यानी कि हाँ वाचक या फिर सकारात्मक जिन्हों आप कहने, और एक होंगे ने नेगेटिव यानी कि नकारात्मक या नाम वाचक, ठीक है। और एक होंगे इंटेरोगेटिव मीनस जिन्हों के कोई क्वेश्चन पुट किया होंगे, प्रश्न वाचक, ठीक है। और ये होंगे ने नकारात्मक यानी कि नाम वाचक, ठीक है। हुण इहदे विच जिहड़ा आपां सिंपली एक ही चीज़ यूज करनी है, या डू यूज करना है या डज यूज करना है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो इंटेरोगेटिव है, डू डज। बस ये की है कि नेगेटिव दे विच आपां नाल डू नॉट या डज नॉट यूज करना है, डू नॉट या डज नॉट यूज करना है। और इंटेरोगेटिव दे विच डू या डज जिहड़ा है वो सब्जेक्ट तो पहला आएगा, सब्जेक्ट तो पहला आएगा,
डू या डज जिहड़ा आ सबजैक्ट तो पहला आऊगा। जिद्दां मैं एक एग्जाम्पल लै लैनी आ, he writes a letter, he writes a letter, ओह चिट्ठी लिखदा है, ओह चिट्ठी लिखदा है, he writes a letter, सिंगुलर है, ठीक है, वर्ब दे नाल एस लग गया, ठीक है जी। सो जदों आपां इहनूं नेगेटिव दे विच बदलना है, ओह चिट्ठी नहीं लिखदा है, ठीक है, जेकर आप इत्थे कह लईए ओह चिट्ठी नहीं लिखदा है, फिर ही दे नाल क्या होगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। हुण इत्थे डू क्यों नहीं आया वो भी मैं तुहानूं दसांगी, ठीक है, कि ही डू नॉट राइट अ लेटर गलत हो जाऊगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि सिंगुलर जिहड़े हुंदे ने ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डू ਤੇ डज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ डज ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ डू ਲੱਗਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਂਸਸ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇ मतलब ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੇ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ, ਫਿਰ ਐਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ठीक है, दे राइट अ लेटर होना सी और ओदी जिहड़ी मतलब नेगेटिव टेंस सेंटेंस ओदा बनना सी होना सी दे डू नॉट राइट अ लेटर, वो चिट्ठी नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह इंटैरोगेटिव दे विच जेकर आपां इनू इंटैरोगेटिव सेंटेंस दा बना लईए ते फिर इत्थे आ जाऊगा डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, की वो चिट्ठी लिखदा है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਡੂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ठीक है, यानी कि सिंगुलर नाल डज लगना है, प्लूरल नाल डू लगना है, चाहे वो होवे नेगेटिव टेंसेस सेंटेंसेस, चाहे होन इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव दे विच डू या डज दे नाल नॉट लग जाना है, इंटैरोगेटिव दे विच डू या डज जिहड़ा सब्जैक्ट तो पहला आ जाना है। चलो एक्सरसाइज देने तो पहला मैं एक क्रक्स जिहड़ा तुहानूं इहदा लिखदा निचोड़ जो भी है लैक्चर का लिख लिया, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस दे विच आपां सब्जैक्ट दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लाउने आ। जदों आपां सिंगुलर दी गल करनी है यानी कि ही शी इट, ते फिर आपां वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस या ईएस लाउणा, राइट। सिंगुलर दे विच जदों आपां क्वेश्चन फॉर्म दे विच कोई भी चीज़ लिखनी है तो डज, फिर सब्जैक्ट का नाम या सब्जैक्ट जो भी होगा करता ते प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। हुण जदों डज लाउणा ना, ये भी तुहानूं याद रखना है, जदों डज लाउणा ते फिर उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस होवे ते चाहे इंटैरोगेटिव होवे, ठीक है। जिद्दां डज ही राइट अ लेटर, राइट्स नहीं होना फिर। इसी तरह ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट्स नहीं होना, ठीक है, ये याद रखियो। फिर उस तो बाद नेगेटिव दे विच डज नॉट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह प्लूरल प्लस आई, प्लूरल मीनस आई वी यू दे, ते आई दे नाल जिहड़ा सिंपली वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगनी है। क्वेश्चन फॉर्म दे विच डू प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और नेगेटिव फॉर्म दे विच डू नॉट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। हुण मैं तुहानूं एक्सरसाइज हुण तुसीं एक्सरसाइज दे विच की करना है कि ये जिहड़ी मैं सेंटेंस लिखे है, बच्चा रोंदा है, ओह कदे सच नहीं बोलदी है, कि ओह इत्थे रहिंदे हन, मैं ये नहीं जानदा, इन्हां नूं तुसीं इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट करना है यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਨਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਪਲੂਰਲ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਪਲੱਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 2 3 4 ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ।